A very good evening to all aspirants. I am Garima Agrawal. I'm an IS officer of 2019 batch. Currently, I'm posted as additional collector in Siddipet district, and I got All India rank of 241 in my UPSC CAC 2017 attempt, and then I got a rank of All India rank 40 in 2018 UPSC CAC exam. So I have done my engineering from Triple IT Hyderabad. I did my BTech and MS in ECE, and during that I went for some research internships in Germany. And but eventually, by the end of engineering, I realized that that was not my calling, and UPSC is something I wanted to give a try. And hence, I started preparing from 2016 onwards in Delhi. Uh, and then I appeared for 2017 attempt. I did take coaching for prelims, not particularly for GS and optional once. And but I do feel that more than the coaching, it's actually the test and self study is what really helped me during this preparation. Now, a lot of people, I think I would like to start with the typical question that why IAS? So that was one question which was in my mind even when I completed my engineering, and also was asked during interview as well. So uh, the major reason is that I loved what I did during my graduation. I thoroughly enjoyed engineering, but this is the nature of job that really excited me. The nature which was multidimensional, which was challenging, which required a lot of interaction with people directly, and which had got more to do with field. So I was not somebody who would have enjoyed a very calm and peace 9 to 10 job in a 9 to 6 job in a corporate office. This was something which I thought could excite me and I could contribute more, and that's when I decided to appear for this exam. But having said that, I would not say that any other job in the world is anything less. Ultimately, this is also just one of the jobs. But any aspirant who's still in this process of making a decision, please do not go after just the glamour of this job, but also try to study a little bit about what is the nature of the job and whether it excites you and whether you will be a suitable candidate for that. If yes, if all those checks are checked, and that is when you should really take a call and start preparing for the exam. Now, before I go into my strategy, both for prelims and mains, I would like to share some of the small apprehensions that a lot of aspirants think about, feel about when they start preparing. These are some of the doubts, fears, and apprehensions that used to affect me and my decision when I had just begun my preparation. Number one, background. So I come from Khargone, Madhya Pradesh. It's a remote district and majorly a tribal district. And I knew that my competition was going to be against a lot of people from, say, Delhi, Hyderabad, or Mumbai. So a lot of times we candidates from smaller places or remote backgrounds do feel apprehended that we may not be able to compete with candidates from posh schools and bigger cities. But eventually, preparation and the results proved that it has got nothing to do with your background. All matters is what you write in the exam and what you present during the interview. And having been into the job for 5 years, I still feel that I nowhere feel that my background has got anything to do with my potential. Second thing is regarding language. That's another a matter of confidence, or rather underconfidence for a lot of aspirants, because I know कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में भी हिंदी मीडियम में अपीयर होते हैं, या फिर
स्कूलिंग हिंदी मीडियम में करके यूपीएससी एग्जाम इंग्लिश मीडियम में अपीयर होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने 10वीं तक अपनी पूरी पढ़ाई एक हिंदी मीडियम स्कूल में की थी। किंतु उसके बाद मैंने आईआईटी और कॉलेज और फिर यूपीएससी एग्जाम भी इंग्लिश मीडियम में दी। हाँ, उससे रिलेटेड चैलेंजेस थे, पर उस पर सिस्टमैटिकली काम करने से मैं उस चैलेंज को ओवरकम कर पाई और मुझे कहीं नहीं लगता कि मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज, मेरी सफलता के रास्ते कभी भी आड़े आई है। सो प्लीज इस बात को भी लेकर आप सब अपने एप्रीहेंशन बाहर कर दीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। आप जो भी मीडियम चूज करते हैं एग्जाम का, डजेंट मैटर, अल्टीमेटली भाषा बस अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। जहां तक आप पेपर में अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इट इज इनफ। तीसरा एक कॉमन फीलिंग है जो है इंजीनियर्स के मामले में। दो पिछले कुछ सालों का स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि काफी सारे इंजीनियर्स का सिलेक्शन हो रहा है, बट एज एन इंजीनियर मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं उस समय पर काफी सारे इंजीनियर्स को भी ये डाउट होता है कि हम ह्यूमैनिटीज इतना नहीं पढ़े हैं, हमें लंबे लंबे आंसर्स लिखने की आदत नहीं है, हमारी भाषा पर ऐसे पर इतनी कमांड नहीं है, फिर हम ऐसे में कैसे अच्छे से लिख पाएंगे। दूसरा एक कॉमन सवाल काफी सारे इंजीनियर्स के दिमाग में आता है कि जब हम एक अच्छे कॉलेज से आईआईटी, बिट्स, ट्रिपल आईटी, इन कॉलेजेस से आ रहे हैं और हमें काफी अच्छी पैकेजेस ऑफर हो रहे हैं, वी गॉट गुड डिमांड इन द मार्केट और हमें अब्रॉड जाने की अपॉर्चुनिटीज है, फिर वो छोड़ के हम इसकी तैयारी क्यों करें। सो पहली बात का जवाब ये कि ये डाउट मुझे भी था कि हाँ, मैं काफी समय से ह्यूमैनिटी से दूर हूँ, तो अब कैसे लिख पाऊंगी। बट बेसिकली अगर आपका बेसिक एप्टीट्यूड है पढ़ने का और लिखने का, तो आप डेफिनेटली एग्जाम कर सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम के सिर्फ साहित्यकारों के लिए नहीं बनी है, आप बेसिक पॉइंट वाइज भी अपने उत्तर सही तरह से लिख पाएंगे, तब भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और रही बात पैकेजेस की, तो जैसे मैंने कहा कि फाइनल ईयर में जब मेरे मेजोरिटी ऑफ द बैचमेट्स एक बड़ी हाई पेइंग जॉब्स के लिए जा रहे थे और मैंने एक अलग पाथ लिया था, तो मेरे लिए भी टफ था। स्पेशली जब वो 1 से 2 साल की जो कह सकते हैं तपस्या थी, दिल्ली में रहकर एक छोटे से पीजी में रह के पढ़ाई करना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डिलीट कर देना। और उस टाइम पे कभी कभी जब पता चलता था कि हमारे कुछ फ्रेंड्स अलास्का घूमने जा रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनसे कंपटीशन नहीं फील होती थी, पर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट हर किसी को आ जाता है कि कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। उस टाइम पे मैं अपने आप को रिमाइंड करती थी कि क्यों मैंने ये डिसीजन लिया है, और थोड़े दिन के लिए मैंने अपने आप के सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए थे, सो दैट मेरे दिमाग में कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। और उसके बाद सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति फोकस करके आई यूज टू कंटिन्यू स्टडी, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया तो बार बार उसे पलट के नहीं देखना है जब तक कि फाइनल एग्जाम ना हो जाए। So with that attitude, I could continue till I wrote the exam, and that is how I could get a positive result within preparation of 1.5 years. Lastly, जो मुझे इंटरव्यू बोर्ड ने भी पूछा था कि despite I got first IPS in my 2017 attempt, so I was 2018 batch IPS, and then got into IAS in 2019. सो मुझसे तब भी इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि एक महिला होते हुए आपने आईपीएस को एज अ सेकंड चॉइस क्यों भरा। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरह के जॉब प्रोफाइल जो सिविल सर्विसेज ऑफर करती है उसमें आपका महिला या पुरुष होने से कोई भी रिलेशन है। इसलिए मैंने बेझिझक होकर आईपीएस अपनी सेकंड चॉइस भरी, ट्रेनिंग भी ज्वाइन करी, फिर से अटेम्प्ट लिखा, आईएएस हो गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई, अदरवाइज आई वुड हैव कंटिन्यूड इन IPS also. So these are some of the things that I wanted to address before I get into technicalities of my strategy and preparation, because मैं जानती हूँ जब भी मैं अपने होम टाउन विजिट करती हूँ और एस्पिरेंट से मिलती हूँ, गाइड करती हूँ, यही कुछ कॉमन सवाल होते हैं जो मुझसे बार बार पूछे जाते हैं, और मैं उनका जवाब देती हूँ, और फिर मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से वो डाउट्स मुझे भी परेशान किया करते थे। अब बात करेंगे प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी की। सो वो ये है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड देन ऑप्शनल, आई विल जस्ट गो देम वन बाय वन।
तो सबसे पहले प्रीलिम्स और मेंस की बात करें तो मैं कहना चाहूंगी कि प्रीलिम्स और मेंस अलग नहीं है। काफी सारे लोगों को लगता है कि अच्छा जून में अगर प्रीलिम्स है तो मैं जनवरी तक मेंस करूंगा, फेब्रुवरी से मई तक प्रीलिम्स करूंगा, फिर जून की एग्जाम। जी नहीं। जहां तक जनरल स्टडीज की बात है, जीएस की बात है, आपको एक इंटीग्रेटेड स्टडी प्लान, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के साथ ही अ, पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो इसके लिए मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा काम आती है वो है टाइम टेबल। मेरी पढ़ाई के हमेशा डेली, वीकली और मंथली टाइम टेबल हुआ करते थे। तो उससे अगर मैंने जून 2016 में तैयारी शुरू की और अगले जून 2017 में मेरी प्रीलिम्स होने वाली थी, मुझे मोटा मोटा आइडिया था कि मैं जुलाई महीने में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगी, अगस्त में क्या, सितंबर में क्या और अगले मई में क्या। सो मैं जनरली एक दिन में एक ही सब्जेक्ट रखती थी। एक एक हफ्ते तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक चैप्टर कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्विच करती थी। और जब मैं पढ़ाई करती थी तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही ध्यान रख के पढ़ती थी जहां तक जनरल स्टडीज का सवाल है। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटी में एक चैप्टर पढ़ रहे हो ऑर्डिनेंस, अब ऑर्डिनेंस को अगर आप प्रीलिम्स की दृष्टि से पढ़ें तो से लक्ष्मीकांत बुक आप पढ़ रहे हैं तो उस बुक में आप उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, क्या सेक्शन है, वो पढ़ेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में उस तरह के सवाल आने वाले हैं। पर मैं उसी के साथ उसी पेज पर उससे रिलेटेड कोर्ट केसेस जो दिए थे वो भी पढ़ लेती थी। फॉर एग्जाम्पल डीसी वाधवा केस और कूपर केस। अब जब मुझे उससे रिलेटेड सेक्शन पता है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पता है और उससे रिलेटेड कोर्ट केसेस पता है, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर का मेरा प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही तैयार हो गया। तो इस तरह से आपकी डबल मेहनत बचती है और आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बन जाती है जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए काफी हेल्प करता है। अब दूसरी स्ट्रैटेजी मेरी प्रीलिम्स और मेंस की थी रिवीजन थ्रू टेस्ट। रिवीजन कैसे करें ये भी अक्सर सवाल मुझसे पूछा जाता है। कुछ लोगों का स्ट्रैटेजी होता है कि वो वीक के 6 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आखिरी दिन उसी को रिवाइज करते हैं। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैं टेस्ट के थ्रू रिवीजन करती थी। सो मैंने किसी एक कोचिंग के सेक्शनल टेस्ट लगा रखे थे। तो सेक्शनल टेस्ट का टाइम टेबल पहले ही क्लियर था कि फर्स्ट सेक्शनल टेस्ट में हिस्ट्री में वो लोग सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ 4 चैप्टर पूछेंगे, अगले में इंडिपेंडेंस मूवमेंट टिल से 1935, उसके अगले में से टिल 1944। सो बस उतना पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ के जब मैं टेस्ट दे देती थी तो एक तरह से रिवीजन हो जाता था। उस पर्टिकुलर टेस्ट में मुझसे जो जो क्वेश्चन नहीं बने मैं उसी दिन उन सेक्शन को फिर से रिवाइज कर लेती थी और जो चीजें छूट गई जिनका मुझे आइडिया भी नहीं था उन्हें मैं किसी और सोर्स से रेफर करके याद करके नोट्स बना लेती थी। तो रिवीजन टेस्ट से मेरी एग्जाम लिखने की भी प्रैक्टिस होती गई प्लस मेरा रिवीजन भी होता गया। दैट वाज फॉर प्रीलिम्स। सिमिलरली फॉर मेंस मैं उस रिवीजन के लिए दिए गए दिन के दिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस लिखकर प्रैक्टिस कर लेती थी। सो फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर वीक में मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है या इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ा है, तो लास्ट उस संडे के दिन मैं उस 6 दिन में पढ़े हुए सब्जेक्ट से रिलेटेड प्री एज वेल एज कुछ मेंस के आंसर प्रैक्टिस कर लेती थी। Third part of the strategy, which is current affairs, which is another very, very important part of this exam at prelims, means and interview. करंट अफेयर्स के लिए मेरी बड़ी डायनामिक सी स्ट्रैटेजी थी। आप भी आपके समय में जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से चेंज करते रहिए। सो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, एटलीस्ट टिल मेंस में एक पेपर तो डेली पढ़ रही थी, दूसरा पेपर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट या सिर्फ एक्सप्लेन पार्ट एक्सप्रेस का पढ़ लेती थी। उसके बाद मैं हर रोज रात को सोने के पहले उस दिन के न्यूज़पेपर पर बेस्ड 10 से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर लेती थी। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर्स कई सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, यूट्यूब अवेलेबल है, कोचिंग्स पे अवेलेबल है। तो एनीथिंग विच सूट्स यू उसी को ऑनलाइन आप उस दिन के करंट अफेयर्स रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। प्लस 2 क्वेश्चंस में हर रोज प्रैक्टिस करती थी आंसर राइटिंग। तो उस दिन के न्यूज़पेपर के आधार पर 2 आंसर्स या 2 क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं उस पे आंसर लिखकर प्रॉपर 7 या 8 मिनट में आंसर लिख के तैयारी कर लेती थी। उससे मुझे उस पर्टिकुलर करंट अफेयर्स का अगेन एक होलिस्टिक तैयारी हो जाती थी
कि अगर ये चीज मेंस में पूछी गई तो कैसे हैंडल करूंगी, प्रीलिम्स में पूछी गई तो कैसे हैंडल करूंगी. Now, last and most important part about prelims and mains is previous year question papers. Previous year question papers are an important block of UPSC preparation. जितना महत्व एक ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का है, लक्ष्मीकांत का है, या स्पेक्ट्रम का है, उतना ही महत्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का है. वो चाहे मेंस हो, प्रीलिम्स हो, या फिर आपका ऑप्शनल हो. उसी से आपको ये समझ आता है कि यूपीएससी कैसा सोचती है, वो आपको आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है. अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो 10 पेज के एक चैप्टर में हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. उसका क्या पार्ट है जिससे उठ के क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो आपको समझ आएगा, सीखने को मिलेगा. तो जो भी तैयारी कर रहा है, आप जो जो चैप्टर्स, जो जो सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड पिछले सालों में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं वो जरूर सॉल्व करिए. सारी कोचिंग्स के टेस्ट पेपर्स एक तरफ, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स एक तरफ. सो प्लीज डू गिव a lot of importance to previous year question papers also. अब ये हो गई बात प्रीलिम्स और मेंस की. आखिरी में एक बात करना चाहूंगी जो शायद सारे ही टॉपर्स कहते हैं, दैट स्टडी स्मार्ट. ये बात कहने में जितनी इजी है, करने में थोड़ी कठिन. स्टडी स्मार्ट का मतलब ये नहीं होता कि डोंट वर्क हार्ड. बिना वर्क हार्ड करे तो शायद ही किसी भी एस्पिरेंट का सिलेक्शन हो पाया है. 10 घंटे की पढ़ाई तो आपको शायद देनी ही पड़ेगी दिन में, एटलीस्ट इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट. बट स्टडी स्मार्ट का ये मतलब है कि आप धीरे धीरे ऐसा सोचने लगे जैसा यूपीएससी सोच रही है. तो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. सो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में 21 मेंबर स्टेट्स है और इंडिया भी उसका हिस्सा है. अब जब आप इस चीज को तैयार करेंगे तो एक कॉमन तरीका क्या होगा कि अच्छा, ये एसोसिएशन किस साल में बना, इसके मेंबर्स कौन कौन है. सो इसके 21 मेंबर्स हैं. तो एक कॉमन एस्पिरेंट उन सारे 21 स्टेट्स की या कंट्रीज का रट्टा लगाएगा. अब इट इज प्रैक्टिकली और ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर 21 कंट्रीज इन अ गो. कंफ्यूजन होने की पूरी संभावना है. अब इसको एक स्मार्ट एस्पिरेंट किस तरह से अप्रोच करेगा कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है कि इंडियन ओशन के सराउंडिंग प्लेस्ड कंट्रीज के अंदर एक एकता हो और वो मिलके अपने इश्यूज को सॉल्व करें. ठीक है, तो अब मैं तैयारी करते समय सिर्फ ये देखूंगी कि उस इंडियन ओशन पे के आसपास किनारे में बसी हुई कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज उसका हिस्सा नहीं है. वो देखोगे तो आप पाओगे कि सिर्फ पाकिस्तान और म्यांमार 2 ऐसे देश हैं जो इंडियन ओशन से जुड़े हैं, पर आयोरा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं है. तो बस मेरी जॉब बहुत सिंपल हो गई. मुझे IORA याद रखना है, उसके डेफिनेशन याद रखनी है कि इंडियन ओशन के सराउंडिंग स्टेट्स कौन से हैं, उसके मेंबर कौन नहीं है वो याद रखना है, बाकी सब उसके मेंबर हो गए नेचुरली. सो ये एक बहुत बेसिक उदाहरण है सिर्फ ये समझाने के लिए कि हम किस तरह से अपना काम इजी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज कि पिछले कुछ सालों से लगातार मैप बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीलिम्स में. तो या तो वो मेडिटेरेनियन सी दे देते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज वहां लोकेटेड है, या फिर उनकी सीक्वेंस, या फिर खाली मैप दे के डॉट दे देते हैं और फिर पूछना चाहते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ लोकेटेड है. अब हमें एज एन एस्पिरेंट लगता है कि अच्छा, ये कहाँ से पूछा गया सवाल. एक्चुअल में वो सारे वही कंट्रीज हैं जो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं आती रही है. सो ऑल दीज कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, अभी जैसे इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रशिया, ये सब कंट्रीज बहुत न्यूज में है. इसलिए हमें आंख बंद के पता होना चाहिए कि अगर मैं वर्ल्ड मैप पे पेंसिल मार्क करना है तो यूक्रेन कहाँ लोकेटेड है, यूक्रेन की सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, यूक्रेन और रशिया कितना बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया के यूक्रेन से क्या रिलेशन है. सो अगर आप करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिस्टिक एरिया से इस तरह से जोड़ते हुए रोज पढ़ेंगे, स्मार्टली इन सब्जेक्ट्स को, इश्यूज को अप्रोच करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. अब आता है जीएस एग्जाम का तीसरा हिस्सा, विच इज पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू. इंटरव्यू में मेरे
मार्क्स दोनों ही साल अच्छे आए थे, 190 एंड 191, which was perhaps the silver lining in my mark sheet because it was perhaps the top 3 or top 5 score of the year. इंटरव्यू की तैयारी मैंने बहुत बैठ के लंबे नोट्स या ये तो नहीं किए, क्योंकि मैं पुलिस की एकेडमी के साथ ही इंटरव्यू के लिए अप्रोच हुई थी. सो तैयारी के टाइम पर मैंने दो न्यूज़पेपर को डेली पढ़ा, राज्यसभा टीवी के कुछ शोज देखे, ताकि जो करंट मुद्दे हैं उस पर मेरा ओपिनियन बने, बोथ प्लस एंड माइनस के साथ. जो हमारा डिटेल फॉर्म होता है डीएएफ, उसके एक एक क्वेश्चन पे मैंने डिटेल्स नोट्स बनाए थे कंप्यूटर पर ही, क्योंकि 60% ऑफ द इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपके डैफ के अराउंड ही रिवॉल्व होता है, तो उसकी मैंने काफी एक्सटेंसिवली तैयारी की थी. और लास्ट मैंने काफी सारे मॉक इंटरव्यूज के लिए अपीयर किया था, ताकि प्रैक्टिस में रहे कि एक क्वेश्चन को मैं पॉइंट वाइज क्रिस्प तरह से कैसे आंसर कर सकूं. पर अल्टीमेटली इन सारी प्रिपरेशन से ज्यादा मुझे जो एक्चुअली इंटरव्यू में काम आया वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड. योर स्पॉन्टेनिटी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड द पर्सनैलिटी that you have built over the years really helps you during your interview. This cannot be done just overnight. ये बात हो गई जनरल स्टडीज की. अब मैं ब्रीफली आई वुड लाइक टू डिस्कस स्ट्रैटेजी फॉर माय ऑप्शनल. काफी सारे कैंडिडेट स्पेशली जो तैयारी शुरू करने वाले होते हैं, उन्हें डाउट होता है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें. जो कैंडिडेट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए चॉइस क्लियर है. जनरली उन्होंने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट को वो लोग ऑप्शनल भी ले सकते हैं. बट जो दूसरे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, से अ सीए और एन इंजीनियर हु वांट टू चेंज, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन. मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था. वाई फिलॉसफी? तो उसके मेरे 2 से 3 कारण हैं. पहला ही इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट हम कैसे जज करें? तो मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो हमारे कॉलेज में 2 से 3 ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट लेना कंपल्सरी था. सो एज एन ऑप्शनल आई हैड टेकन वन सब्जेक्ट कॉल्ड गांधीयन थॉट, विच वाज ऑल अबाउट गांधीयन फिलॉसफी. तो तब से ही मुझे गांधीयन फिलॉसफी और फिलॉसफी इन जनरल में काफी इंटरेस्ट आने लगा, and that sort of helped me to take a decision towards this subject. सेकेंडली जब मैं ऑप्शनल क्या लेना उसका डिसीजन ले रही थी, तब मैंने मार्केट से 1-2 किताबें ले ली थी, 2-3 अलग अलग ऑप्शनल्स की, और सबके एक एक चैप्टर ऐसे ही कैजुअली पढ़ लिए, बिना कोचिंग, बिना गाइडेंस के. अब जिसको पढ़ने में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया या मजा आया, नेचुरली मेरा इंक्लिनेशन उसी सब्जेक्ट की ओर गया. दूसरा रीजन इज सिलेबस. सिलेबस फॉर फिलोसफी इज वेरी कॉम्पैक्ट, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन. इन थर्ड इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ सोर्सेज. तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट के से रिलेटेड कोचिंग्स भी अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है, एंड अदर मटेरियल इज आल्सो वेरी रेडीली अवेलेबल. और इस रीजन से भी मैंने ये सब्जेक्ट लिया. पर एक चौथा भी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है ऑप्शनल लेने के समय, और वो होता है स्कोरिंग. सो ये सब्जेक्ट जब मैंने लिया था ठीक ठाक स्कोर कर रहा था, बट समहाउ during our years it did not score so well. I remember I could score just 270 or 271, and perhaps some highest marks itself were just 300, wherein other toppers of our batch had subjects like math where they could score as high as 330 or 350. So I think any decision you take, you also check this one of the criterias, whether that subject is scoring or not. अब मेरे सोर्सेस फिलोसफी के क्या थे, आई कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू देम. इसके 4 हिस्से होते हैं: इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी, एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन. सो फॉर इंडियन फिलोसफी आई रेफर टू सी.डी. शर्मा, फॉर वेस्टर्न वाई मसी, फॉर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे O.P. Gauba, and for philosophy of religion Y. Massey. Apart from that, I did consolidation of notes, compiling it with coaching notes as well as the books. अब ऑप्शनल की मेरी तैयारी की स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने अपने पेपर 1 और पेपर 2 को इक्वल इंपॉर्टेंस दी. जनरली फिलोसफी के स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो पेपर 2 को थोड़ा लाइट ले लेते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े जेनेरिक होते हैं, आपके GS 2 से और GS 1 से रिलेटेड होते हैं. बट हमारे लिए स्कोर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने दोनों ही पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी. नोट्स का कंसोलिडेशन बहुत अच्छे से किया और आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा की.
और जो मैंने इसके पहले कहा, प्रीवियस ईयर आंसर क्वेश्चन एंड आंसर हेल्प्स इन ऑप्शनल प्रिपरेशन टू, क्योंकि कई सारे ऑप्शनल का पेपर कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। तो मैंने शायद फिलोसफी के पिछले साल के हर क्वेश्चन का आंसर लिख के प्रैक्टिस किया था, जो मुझे काफी हेल्प भी आया। अब बात जहां आंसर राइटिंग की कर रही है, तो काफी सारे लोगों का एक सवाल होता है कि आंसर को कैसे फ्रेम करें। आंसर के लिए मैंने अपने मन में ही एक स्ट्रक्चर बना रखा था, और जनरली मैं उसी स्ट्रक्चर को आई यूज्ड टू स्टिक ऑन टू दैट स्ट्रक्चर थ्रू आउट माई एग्जाम। तो एक कॉमन, वैसे तो हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, बट एक कॉमन फ्रेम और स्ट्रक्चर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहले तो फिलॉसफी ऑप्शनल के लिए 6 या 7 पॉइंट का मेरा स्ट्रक्चर था। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद द थ्योरी और द डॉक्ट्रिन जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, थर्ड उसका क्रिटिसिज्म, फोर्थ उसका कंपैरिजन विद अदर फिलोसोफर्स, फिफ्थ उसकी सिग्निफिकेंस कि क्यों वो रेलेवेंट है, एंड लास्ट कंक्लूजन। ये मेरा एक 6 पॉइंट का स्ट्रक्चर था, और मैं लगभग हर आंसर को इसी तरह लिखती थी। ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर मैं जनरल स्टडीज के मेंस में भी फॉलो करती थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर, इट विल डिपेंड फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। थर्ड, जो भी थ्योरी या कॉन्सेप्ट हमसे पूछा गया है उसका जो कॉमन क्रिटिसिज्म है वो। फोर्थ, उसका एप्लीकेशन इन रियल लाइफ या फिर एग्जाम्पल फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो से ऑर्डिनेंस पर अगर सवाल है तो रिसेंटली कोई 2 एग्जाम्पल जहां पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड पास हुए हैं, या फिर से विमेन की टेम्पल एंट्री में बात चल रही है या आर्टिकल 14 की बात चल रही है, तो सबरीमला या ऐसे कोई और एग्जाम्पल जिस पर चर्चा चल रही है उसके 2 एग्जाम्पल। देन फिफ्थ वाज सिग्निफिकेंस, कि जो सब्जेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है उसका सिग्निफिकेंस क्यों है, रेलेवेंस क्या है, एंड लास्ट में कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में मैं या तो किसी कोट की हेल्प लेती थी, जो भी हमसे पहले महापुरुष फिलोसोफर्स और राइटर्स हुए हैं उनकी, स्पेशली इन एथिक्स एंड एसे आई टुक हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ कोट्स। इन GS 2 and 3 I used to take help of a lot of commissions and their reports. So आप सबको पता है कि अगर रेलवे की बात है तो विवेक देबरॉय की काफी सारी कमीशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं। अगर पर्सनल्स की, एम्प्लॉइज करप्शन उससे रिलेटेड बात है तो गवर्नेंस रिलेटेड फाइनेंस कमीशन की, पे कमीशन की, नीति आयोग की कई सारी कमिटीज, रिपोर्ट्स, गाइडलाइंस है। तो इस तरह के कमीशंस, रिपोर्ट्स, गाइडलाइन से भी मैं इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में हेल्प करती थी। तीसरा हेल्प दैट आई यूज्ड टू टेक वाज रिलेटेड टू डेटा। तो मैं अपने इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में किसी न किसी डेटा का भी यूज करने की कोशिश करती थी। अगर सवाल GS 1 का सेक्स रेशियो के ऊपर है तो मेरा फर्स्ट आंसर इटसेल्फ यूज्ड टू बी कि एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सेक्स रेशियो इन इंडिया इज दिस, एंड देन आई यूज्ड टू कंटिन्यू माय आंसर। या फिर सवाल इज अगेंस्ट से डोमेस्टिक वायलेंस और से अगेंस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो मैं शुरुआत करती थी एज पर NCRB रिपोर्ट 2019 that many cases of left wing extremism has affected X number of deaths in India। और फिर उसके बाद पूरा आंसर बिल्ड करके लास्ट कंक्लूजन में X and Y committee has recommended these thing to be followed for successful handling of this subject। तो इस तरह से मेरे पास कुछ रेडीली अवेलेबल नोट्स थे, जिसके अंदर मैंने बहुत सारा डेटा, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स, कमीशन रिपोर्ट्स और कोट्स एक जगह सेव कर रखे थे, और उन्हीं सारी चीजों को हेल्प लेकर मैं अपने आंसर्स एज वेल एज ऐसे को तैयार करती थी। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि ऐसे या आंसर को मल्टी डायमेंशनल कैसे रखें। सो क्वेश्चन आंसर को हमेशा मल्टी डायमेंशनल रखना पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी कभी जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका डायरेक्ट आंसर देना है, उससे रिलेटेड सारे प्लस, उससे रिलेटेड सारे माइनस, फिर उसकी सिग्निफिकेंस बताना है, बट ऐसे जरूर मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए।
मल्टी डायमेंशनल की प्रैक्टिस आई एम श्योर आपने भी और भी कुछ टॉपर्स की देखी होगी. उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, आप जो सब्जेक्ट है उसको सर्कल में लिखो, फिर उसके अराउंड करीब 10 डायमेंशंस क्रिएट करो. उसका सोशल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल, इंडिविजुअल, ethical, health related, all these subjects that you have in general studies, economic, environmental, पॉलिटिकल, ये सारे एंगल से उस सब्जेक्ट को ब्रेक करने की कोशिश करिए. तो अगर सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू से प्लांटेशन और एफॉरेस्टेशन, तो एफॉरेस्टेशन का सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस क्या है, फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रिलीजन में इसकी बात कहाँ हुई है, ये सारे पॉइंट जोड़ते जोड़ते आप उसको जितना ड्राइवर्स बना सकते हैं बनाइए, और आखिरी के कंक्लूजन में एक पेज पर उन सारे पॉइंट्स को एक तरफ कन्वर्जेंस पर लाते हुए अपनी एक बात करते हुए कंक्लूड करिए. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ऐसे के लिए अपियर हो रहे हैं, आप टॉपिक्स, हर टॉपिक को केयरफुली पढ़ें, बोथ हिंदी और इंग्लिश में, ताकि उस सब्जेक्ट की आपको ठीक से समझ बने. उसके बाद प्रॉपरली 10 मिनट का ब्रेनस्टॉर्म करें, उसके बाद ऐसे लिखना शुरू करें. एक बार ऐसे लिखने के बीच में आपको अटकना नहीं है. आप क्या लिखने वाले हैं उसका रफ वेन डायग्राम आपके पास पहले ही रेडी होना चाहिए, ताकि ताकि आप हर पेज लिखने के बाद पीछे रफ में देख सके कि अच्छा मुझे अगला पॉइंट क्या कवर करना है. और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप फाइनल एग्जाम के पहले अपने कुछ एसेस को घर बैठकर प्रैक्टिस करें और लिखकर प्रैक्टिस करें. So that's how I think you will be able to handle your essay and answer writing preparation also. So I think I've tried to cover most part of my strategy. Now I'm trying to go through some of the common questions. ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे करें मैंने अभी बता दिया. जो टॉपिक है उसको लेकर उसके आसपास के 10 डायमेंशन बनाइए, और सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद उसके 10 जो अलग अलग डायमेंशन है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, फिर आखिरी में उसका क्रिटिसिज्म करिए और लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए. फिर ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें, तो उसके लिए आप इस साल के क्वेश्चंस देखिए, पिछले 5 साल के ऐसे के सब्जेक्ट्स उठा के कुछ ऐसे को एक्चुअली लिखकर अटेम्प्ट करें, अपने आप का आपको समझ आएगा. ऑनलाइन कुछ टॉपर्स के एसेस अवेलेबल है, उन ऐसे को पढ़िए, तब भी आपको समझ आएगा. ऑल्सो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कभी किसी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में उस सब्जेक्ट को कवर किया गया है तो वो भी पढ़िए, तब भी आपको समझ आएगा कि कोई एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर उस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करता है. क्वेश्चन की डिमांड क्या है, कैसे पता करें. क्वेश्चन की डिमांड जनरली काफी क्लियर होती है, एक्सेप्ट से इन सम वेग क्वेश्चंस ऑफ GS4. आई थिंक कैसे पता करें वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा. आप मल्टीपल टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए, आपको नंबर आएंगे तब आपको समझ आएगा कि उसमें क्या मिसिंग था क्या नहीं. निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें. सो निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए मुझे एक किसी ने ये ट्रिक सिखाई थी कि पूरे क्वेश्चन को, पेपर को 3 राउंड में एड्रेस करिए. सबसे पहले उस पेपर के सारे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसको लेकर आप 100% श्योर हैं. तो हो सकता है कि 100 क्वेश्चन के पेपर में 60 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको 100% श्योर है, वो कर लिए. सेकेंड राउंड में वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसके लिए आप 50-50% श्योर हैं. 50-50% श्योर होने के बाद से आपका स्कोर 80 to 90 आ रहा है, उसके बाद आपको शायद थर्ड राउंड की जरूरत नहीं है. पर से सेकेंड राउंड के बाद भी आपके सिर्फ 70 क्वेश्चन हो पाए हैं और आपको पता है कि इससे आपका कट ऑफ क्रॉस नहीं हो पाएगा, तो तीसरा राउंड भी लीजिए जिसमें एटलीस्ट पार्टली आपको लग रहा है कि आप एलिमिनेट करके कुछ आंसर कर सकते हैं. सो हो सकता है कि पूरे 3 राउंड करने के बाद कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस रह जाएं जो आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, तब आप वो 5-6 क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं. पर कम से कम तुक्के मारिए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले क्वेश्चंस को पहले करिए, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग. सो इस होड़ में मत रहिए कि मुझे 1.5 घंटे में पूरा पेपर करना है, 100% क्वेश्चन करना है. नहीं, पूरा पेपर एक राउंड में पढ़ के राउंड बाय राउंड क्वेश्चंस करिए.
डैफ कैसे बनाना चाहिए? डैफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो उसी के कारण यू विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस एग्जाम। डैफ में बनाने का कुछ नहीं है, जो सच है वही लिखिए, क्योंकि आप उसी को इंटरव्यू में बता पाएंगे। मैंने काफी सारे कैंडिडेट्स को देखा है कि वो सिर्फ इम्प्रेसिव बनाने के लिए अपनी हॉबीज फेक लिख देते हैं। और ट्रस्ट मी, वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले व्यक्ति हमसे एज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज में बहुत आगे हैं। तो हमने कोई भी फेक हॉबी लिख दी एंड दे गो इन टू डेप्थ, वी मे गेट कॉट एंड एक्सपोज। तो जो सच है वही लिखिए। जो पर्सनल डिटेल्स है वो तो सबको पता है, आप कहाँ से हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, कास्ट क्या है, कॉलेज कहाँ से किया, पहली जॉब क्या है। जो डैफ में आपके पास सब्जेक्टिव चीजें वही है, पिछले अचीवमेंट्स क्या थे, इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, लीडरशिप की कोई पोजीशंस रखी है क्या। तो उसमें भी जितना पॉसिबल है आपकी स्कूल, आपकी कॉलेज या प्रीवियस जॉब में आपने कोई लीडरशिप का काम किया है उसे मेंशन करिए, कोई मेडल मिला है वो देखिए, किए वो लिखिए, कोई कंट्री विजिट किए करिए, और जो जेन्युइनली आपकी हॉबी रही वो लिखिए। अगर आपकी हॉबी टीवी शोज देखना है तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं, बजाय ये लिखने की कि मुझे रामचरितमानस पढ़ना है। अगर मानस पढ़ना आपकी सही में हॉबी है तो लिखिए, गो हेड, इट्स वेरी गुड हॉबी। बट सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठा क्वेश्चन या आंसर मत लिखिए। So a lot of people are asking about how to prepare notes after reading a static subject. So honestly, मैं एक ऐसी कैंडिडेट थी जिसने हर सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए। मैंने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के हर चैप्टर के नोट्स बनाए हैं। वहाँ मैंने बहुत मेहनत की। उसके अलावा मैंने सिर्फ उन चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं जीएस में जिसके लिए मल्टीपल सोर्सेज को जोड़ने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल जीएस 3। जीएस 3 इतना वास्ट है बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस कि कोई भी एक सोर्स इनफ नहीं है। तो जीएस 3 में मैंने थोड़ी चीजें इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी से पढ़ी, थोड़ी चीजें इकोनॉमिक सर्वे, थोड़ी चीजें इंडियन बजट, और थोड़ी चीजें करंट अफेयर्स से लेके कुछ कॉमन जो टॉपिक थे उसके नोट्स बनाए थे। और कुछ जो मेंस रिलेटेड जो रेगुलर करंट अफेयर्स आ रहे थे जिसको लेकर मुझे लगता था कि इस पे डेफिनेटली जीएस 2 या 3 में सवाल आएगा, उसको लोग लेके भी मैंने इस तरह से नोट्स बनाए थे कि अगर कोई करंट अफेयर्स चल रहा है, सिंदूर हुआ, उस पर लगभग 1 महीने तक हर रोज न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ आया, रोज कुछ एक्स्ट्रा डिटेल मिली, रोज कुछ एक्स्ट्रा ओपिनियन आए। तो ऐसे सब्जेक्ट पे मैं रोज कुछ ना कुछ ऐड करके अल्टीमेटली 3-4 पेज पे पूरी समरी लिख लेती थी ताकि उससे रिलेटेड प्री मेंस दोनों कवर हो जाए। बट बाकी जो प्योरली स्टैटिक चीजें हैं, से ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट या हिस्ट्री, उनके मैंने नोट्स नहीं बनाए। उसके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री, एनसीईआरटी फॉर ज्योग्राफी, शंकर आईएएस फॉर इन्वायरमेंट, ये मैंने रेफर करी थी। तो उन्हीं बुक्स पे मैं हाईलाइट करके साथ में कुछ छोटा सा एक्स्ट्रा नोट लिखकर अपनी तैयारी करती थी या स्टिकी नोट्स बना लेती थी। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आईएएस की जर्नी कैसी रही। तो आई थिंक कंपेयर टू दोज एस्पिरेंट्स हु हैव जस्ट पास दिस एग्जाम, मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव, थोड़े लंबे पर्सपेक्टिव के साथ कह सकती हूँ कि इट इज वर्थ इट। अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगता है। हर रोज मेरा ऑफिस का थोड़ा नया, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। डेफिनेटली कुछ मोमेंट्स ऑफ प्रेशर, चैलेंजेस एंड डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, बट मेजरली इट इज पॉजिटिव। जो हमें एक वास्ट स्केल और प्लेटफॉर्म मिला है वो शायद ही कहीं और मिल सकता है। देर इज नो सब्जेक्ट अनटच्ड। एक दिन मैं शायद अपने डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ, डिलीवरीज और डेंगू के केसेस डिस्कस कर रही हूँ, तो उसी दिन शाम को मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, लैंडस्केपिंग प्लान कर रही हूँ। कहीं मैं किसी टूरिज्म पोटेंशियल के लिए, लेक डेवलपमेंट के लिए डिजाइन बना रही हूँ, तो ऑन सम अदर हैंड वी आर टेकिंग some court case related to a very long pending revenue और land matter। तो एक उनके ही अंदर इतने सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स हम छू लेते हैं कि डेफिनेटली it keeps you motivated and excited। So that is why I can say कि so far the journey has been good, and that is why all of you should continue to work hard and give your best for this exam।
अब काफ़ी लोग कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन के लिए मैंने बताया कि मैंने भी अपनी 12th के बाद एक यूजुअल आई वेंट फॉर अ यूजुअल वे वेयर आई प्रिपेयर्ड फॉर जेईई, गॉट इनटू अ गुड कॉलेज। सो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ यंग एस्पिरेंट जो अभी भी स्कूल में है, उनको ये कहना चाहूंगी कि प्लीज डू गो फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री। अपनी ग्रेजुएशन सिर्फ इस बेसिस पे डिसाइड मत करिए कि आगे यूपीएससी देना है। एक अच्छी डिग्री लेंगे तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी रहेगी, और जब आपके पास जॉब सिक्योरिटी है तो आप यूपीएससी की तैयारी बिना प्रेशर, बिना डर के कर सकते हैं, बिकॉज यू नो इफ दिस डजंट वर्क आउट यू हैव अ गुड बैकअप इन माइंड। और एग्जाम के बीच बीच में डाउन टाइम सबका आता है, निराशा आती है, कुछ टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं। मेरे लिए एक छोटा एग्जाम्पल ये था कि जीएस 3 मुझे हमेशा से थोड़ा टफ लगता था। जब मैंने अपने मेंस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट दिया था जीएस 3 का, आई रिमेम्बर आई स्कोर्ड ओनली 45। I remember only 45 out of 250. And I almost cried when I saw the transcript. And I thought, this is not for me. I would not be able to do it. But I can say that in both my attempts, I scored highest in India in GS3, both in 2017 and 2018. सो इसलिए जो तैयारी के टाइम के जो मोमेंट्स है उसको एब्सोल्यूट सेंस में मत लीजिए। कभी आप फेल होंगे, कभी आप अच्छा करेंगे। एग्जाम आने तक आप डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे। मोटिवेशन की जहां तक बात है, मैं कुछ पॉजिटिव चीजों को अपने साथ रखती थी। जैसे मैंने लगभग योगा हर रोज किया ही है, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स। दूसरा, मैं अपने मम्मी पापा से रोज बात करती थी बिकॉज दे गेव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी। तीसरा, मैं इस सर्विस में आने का रीजन अपने आप को रिमाइंड करती थी, सो दैट आई डोंट फील डाउन। एंड चौथा, मुझे इंस्पिरेशन मिली थी आईएएस बनने की मेरे खुद की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देख के। सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन स्कूल इन क्लास 6th or 7th, I remember my district collector, Mrs. Alka Upadhyay ma'am, had visited my school as a chief guest, and that's when I had seen a collector first time, and I went home and asked my father who a collector is, collector करता क्या है। एंड जब मुझे पता चला कि अच्छा ये सब वो करते हैं और एक महिला को समाज में इतना ऊंचा स्थान भी मिल सकता है, इट समहाउ स्प्राउटेड दैट आइडिया इन माय माइंड कि मुझे भी आगे जाकर ये करना है। तो वो स्टोरी को आई यूज्ड टू कीप रिविजिटिंग अगेन एंड अगेन एंड रिमाइंड माई सेल्फ दैट वाई I should this. And having said that, it is difficult, but if you can do it, it's great. Try to enjoy the journey. Try to enjoy and love what you read. For me, also, the journey was difficult. Uh, but I remember there were some of the subjects and things I actually used to love reading. There's this thick book of India After Gandhi, written by Guha. I thoroughly read that book because I really loved it. So, similarly, some of the parts of philosophy, I thoroughly enjoyed reading that. So, if you really start enjoying the process, start enjoying reading all those things which are part of the syllabus, you will not mind that journey as much, and it will ease your journey and smoothen it till the time you reach your final stage, that is interview. Okay, so I think I've tried to cover as much as possible. With this, I would like to close this session. And I want to wish all the aspirants all the best. And as I discussed a few things in the beginning, doesn't matter you come from MP or Bihar or Hyderabad or Delhi or rural or urban background. Doesn't matter you speak Telugu, Hindi or English. Doesn't matter whether your parents are civil servants or farmers or scientists. Doesn't matter whether you're a student of humanities or engineering or a doctor. What matters is what is inside you, your hard work, your willpower, and what you write on the paper. And that will take you high. And having said that, I would just like to conclude that if I can do it, all of you can. So thank you so much. All the best.